Hi guys, I hope you all are well today. Today we will discuss chapter 5 Continuity and Differentiability. Exercise number 5.3. What is an implicit function? The function which contain x and y variable are called implicit function. जिस फंक्शन में x एंड y वेरिएबल होगा उस फंक्शन का नेम होगा implicit फंक्शन. सच एज अगर हम किसी x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें तो उसका क्या आएगा 1. अगर हम y का विद रिस्पेक्ट टू x करें तो इसमें होता है dy by dx. दिस इज द मीनिंग. नाउ अगर हम करें sin x का विद रिस्पेक्ट टू x सो इसका होता है cos x. अगर हम करें tan x का विद रिस्पेक्ट टू y तो इसका क्या होगा secant स्क्वायर y. जब भी y आता है तुम्हारे इसके साथ आता है dy by dx. दिस इज द मेन पॉइंट. व्हेन y occur then we have to write dy by dx. One more example for tan y. If we have cot y and we have to differentiate it with respect to y, then we have minus cosecant square y and dy by dx with this. This is the main point. Mostly in this exercise we have y, so we have to write dy by dx. Now we will start the exercise. Find dy by dx and the following. We have to find dy by dx in the following. Question number 1. Question number 1 है 2x plus 3y is equals to sin x. We have 2x plus 3y is equals to sin x. So how can we solve this? We have to find dy by dx. So firstly we have to differentiate 2x. 2 सेम आएगा, x का डेरिवेटिव कितना है 1. 3 सेम आएगा, y का डेरिवेटिव बताया था dy by dx. When y occur then we have to write dy by dx. sin x तो क्या होता है cos x. तो हम यहाँ से dy by dx निकाल सकते हैं. 2 into 1 2 plus 3 dy by dx same and 2 is equals to cos x. dy by dx हमने यहीं पर रखना है. 3 dy by dx सेम रखा. 2 को हम उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा. तो अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर क्या हो जाएगा डिवाइड. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ और सेकंड क्वेश्चन. 2x plus 3y is equals to sin y. अब ये भी सेम है बट इसका ना डिफरेंस क्या है x एंड y का. This is also same question. 2 same as it as 1 x का 1 3 y का dy by dx. sin y का क्या होता है हमारे पास
cos y dy by dx। अब dy by dx क्यों लगाया, क्योंकि y के साथ हमेशा dy by dx आता है, और इधर भी y इसलिए लगाया क्योंकि इसका एंगल है ये, ठीक है। 2 plus 3 dy by dx as it is equals to cos y dy by dx as it is। So हमें dy by dx निकालना है, dy by dx इधर भी है, तो हम इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। 2 as it is cos y dy by dx same minus 3 dy by dx। Can we take the common dy by dx from this? So 2 is equals to dy by dx into cos y minus 3। So dy by dx निकालना है, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। So dy by dx is equals to 2 of cos y minus 3। This is the answer of this question। Now our third question, we have to find dy by dx in third question also। If you want to write this, please stop the video and write down। Question number 3। Question number 3 said that ax plus by square is equals to cos y। We have to differentiate this। So we know that the differentiation of x is equals to 1, a same, x का differentiation 1 plus b same, y का differentiation होगा n x n minus 1 से क्या हो जाएगा n x क्या है y n minus 1 2 minus 1 1, और y का differentiation क्या होता है dy by dx। cos y का क्या होता है हमारे पास minus sin y है तो क्या आ जाएगा dy by dx। तो dy by dx इधर भी है, dy by dx इधर भी है, तो इधर माइनस वाला है नेगेटिव है, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं a को। b 2y dy by dx as it is, इस साइड as it is रहा, माइनस वाला नेगेटिव वाला इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा sin y dy by dx। अब ये पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a हो जाएगा। तो dy by dx इधर भी है, dy by dx इधर भी है, तो क्या करेंगे, we have to take common dy by dx from this is equals to minus of a। If we want to find dy by dx, then we have to divide this। So the answer is minus a upon 2by plus sin y। This is the answer of third question। Note down। Please stop the video if you want to write down। Now move on to next question। Question number 4। Question number 4 भी इसी जैसा है बट थोड़ा सा अलग है। xy plus y का स्क्वायर is equals to tan x plus y। इसमें हमें ना प्रॉपर्टी यूज करनी है जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में यूज करी थी यूवी वाली। तो वो प्रॉपर्टी कैसे थी हमारे पे यूवी की, ये u लेट करेंगे ये भी लेट करेंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी u डैश v प्लस v डैश u, v डैश u। सो u v की प्रॉपर्टी u डैश क्या होगा हमारे पे x का डेरिवेटिव 1 v सेम प्लस v डैश, v क्या हमारे पे y, इसका क्या डेरिवेटिव होता है y का dy by dx, और u सेम प्लस y के स्क्वायर क्या होगा nx n minus 1, n क्या है 2, 2y 2 minus 1 dy by dx as it is। tan x का क्या होता है हमारे पे डेरिवेटिव secant square x, और y का क्या हो जाएगा dy by dx। जब भी y आता है हमें dy by dx कर लिखना ही पड़ता है यदि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 into y x dy by dx
ये सारा हमारा एज इट इज आ रहा है, प्लस 2y dy बाई dx सेम, सीकेंड स्क्वायर x वहीं रह देते हैं, dy बाई dx इधर ले आते हैं, dy बाई dx इधर आ गया, इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x। अब क्या करते हैं, y इधर है, y को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx एज इट इज चल रहा है सारा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x। y इधर था, y इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, dy बाई dx इधर भी है, dy बाई dx इधर भी है, dy बाई dx इधर भी है, तो we have to take common dy by dx from this, x plus 2y minus 1 is equals to secant square x minus y। तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, बिकॉज हमें dy by dx निकालना है, secant square x minus y, फिर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड प्लस 2y minus 1। दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज नोट इट। Now move on to next question, question number 5। Question number 5। Now move on to question number 5, x square plus xy plus y square is equals to 100। If we have number from 1 to infinite, so the derivative of these numbers is equals to 0. For example 100, the derivative of 100 is equals to 0. So let's solve the question. The derivative of x square is 2x and minus 1, and minus 1 is equals to 1 बचेगा, कि 2 minus 1 होता है, xy u and v, u derivative v plus v derivative u x हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, 2y dy by dx is equals to 0। ओके, 2x as it is plus 1 into y plus dy by dx as it is x plus 2y dy by dx as it is equals to 0। so dy by dx टर्म इधर ही रखेंगे और बाकी टर्म हम उधर ले जाएंगे, dy by dx as it is x मल्टीप्लाई हो रहा है 2y, ये दोनों टर्म रख रहे हैं 2y dy by dx as it is equals to minus of 2x plus y। So take common dy by dx from these, x plus 2y is equals to minus of 2x plus y। So if dy by x plus 2y is multiplied, then it will divide on another side, which means on x plus y। This is the answer of this question, question number 6, sorry 5th। Now we have to solve 6th question। Move on to next question। Question number 6 है, x cube plus x square y plus y square x plus y cube is equals to 81। This is the question number 6। ये भी उस जैसा ही है, बट इसमें 2 times प्रॉपर्टी यूज होगी, 1 for 1 here 1 here। तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर n x n minus 1 से x स्क्वायर y में u v की प्रॉपर्टी यूज होगी। u v की प्रॉपर्टी क्या होती है, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। सो x स्क्वायर u डेरिवेटिव v सेम प्लस v डेरिवेटिव u सेम प्लस u डेरिवेटिव v सेम
प्लस v डेरिवेटिव u से प्लस x क्यूब का क्या होगा, सॉरी y का क्यूब क्या होगा 3y स्क्वायर dy by dx बिकॉज y है, और 81 का क्या होगा 0। अभी बताया तो कोई भी नंबर आ जाए तो क्या डेरिवेटिव होगा उसका 0। अब हम y वाली टर्म एक साइड रखते हैं और सिंपल टर्म एक साइड कर देते हैं, तो क्या होगा हमारे पे 2xy सॉरी dy by dx x क्यूब प्लस 2y dy by dx x प्लस 3y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू, ये टर्म हमने लिख ली dy by dx की, ये टर्म लिख ली, ये टर्म लिख ली। अब हमारे सिंपल कौन सा बचे, this and this, so we have to take these three terms on another side as 3x cube minus for plus 2xy plus y square। Okay, now take dy by dx as common, अंदर क्या बचेगा x square plus 2xy plus 3y square minus of 3x square plus 3xy plus y square। ओके, dy by dx को मैं निकाल रहा हूँ तो dy by dx सेम रखेंगे, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस y स्क्वायर, मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दी, माइनस बाहर था अपॉन में दिस इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन, नॉट इट। Now move on to question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन स्क्वायर y प्लस cos xy is equals to पाई, पाई वाली वैल्यू 22/7 3.147 वाली। सो इसमें साइन स्क्वायर y भी है, cos xy भी है, तुम क्या करते हैं इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर y और cos xy बिकॉज दे आर डिफरेंट फंक्शन। साइन स्क्वायर y को क्या लिखेंगे हम, साइन y का होल स्क्वायर, हमें पिछले एक्सरसाइज में कराया वाला 5.2 में, तो हमने क्या करा था उस एक्सरसाइज में, साइन स्क्वायर y को t लेट करा था, t स्क्वायर को y, साइन स्क्वायर y को t और t का स्क्वायर y, तो साइन y का क्या हो जाएगा cos y dy by dx और t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t। ओके, और t की वैल्यू के हमारे पास साइन y। नाउ आते हैं cos xy पे, xy को हम क्या लेट करते हैं t, cos t को हम क्या लेट करते हैं y, xy का डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम बताओ, uv से, uv वाली प्रॉपर्टी से, u डैश v प्लस v डैश u। ओके, अब cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ t एंड द वैल्यू ऑफ t इज xy, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। Now we have to put the value of sin square y derivative in this and the cos xy के derivative in this। So sin square y की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos y dy by dx, 2 of sin y plus y plus dy by dx x of minus of sin xy is equals to 0 because पाई की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि पाई क्या होता है 22/7 और 22/7 की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तुम dy by dx सेम रखते हैं यहाँ,
इसको हम खोलते हैं cos y, सॉरी dy by dx हम इसके आगे ले आते हैं क्योंकि हमें डिफिकल्टी ना हो सॉल्व करने में। cos y 2 sin y प्लस, अब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी, इसकी माइनस साइन वाई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा माइनस ऑफ वाई साइन वाई, माइनस क्योंकि माइनस था इधर, माइनस यहाँ भी हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहीं पे रखते हैं टर्म, डी वाई बाई डी एक्स सेम cos y 2 sin y माइनस ये है नेगेटिव है तो dy by dx सेम x sin y एज इट इज, नेगेटिव है उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑफ y sin y, ओके sin y xy सॉरी xy sin xy as like now we have to take common dy by dx from these, so अंदर क्या बचेगा cos y 2 sin y minus of x sin xy is equals to y sin y, so sin xy dy by dx as it is equals to multiply और यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड sin xy अपॉन में cos y 2 sin y minus of x sin xy. This is the answer of this question, not it. If you want the answer, जो बैक में आंसर है अब उसके जैसा मिलाना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 sin y cos y इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास sin 2y का फॉर्मूला, sin 2y, तो sin 2y आप यहाँ पुट कर दो तो भी आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है 2 sin y का, not it. Now move on to next question. Question number 8. Question number 8 has sin square x plus cos square y is equals to 1. ये हमने पहले भी करा, मतलब हमें फॉर्मूला पता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स हमने पहले भी लिखा था साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स को हम टी लेट करते हैं और टी के होल स्क्वायर क्या लेट करते हैं हम y, तो साइन एक्स का क्या होता है cos x और टी के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, 2 ऑफ cos t क्या होता है sin t, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर y को cos y का होल स्क्वायर, तो cos y को हम t लिखते हैं और t के स्क्वायर को हम y लिखते हैं, cos y का sin y dy by dx and t का स्क्वायर क्या होगा 2t, ओके। नाउ माइनस ऑफ 2 sin y cos y dy by dx, this is the derivative of cos square y. Now we have to put the value of these in this. Firstly sin square x का डेरिवेटिव हमारे क्या था 2 cos sin t, फिर sin x, to cos x sin x, to cos x sin x,
नाउ प्लस का साइन, अंदर क्या है माइनस ऑफ dy by dx टू ऑफ sin y cos y एंड वन का डेरिवेटिव क्या होगा 0 क्योंकि दिस इज आल्सो नंबर। तो अब इसमें हम क्या करते हैं dy by dx यहीं रहने देते हैं, इस टर्म को वहां शिफ्ट कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर माइनस ऑफ dy by dx टू sin y cos y is equals to minus of 2 sin x cos x, माइनस से माइनस कैंसल, तो dy by dx यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 sin x cos x डिवाइड बाय 2 sin y cos y। अब 2 sin x cos x का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है हमारे पास sin ऑफ 2x, और 2 sin y cos y का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास sin 2y। बस इसमें एंगल ही चेंज हुआ है, x था या y था या x हो गया या x हो गया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ we will discuss other question in other lecture. Thank you for watching my video. Bye bye. Meet in next video.